I'm in a dilemma what language I should speak to you. First I'll speak in English, then in Hindi, then in Marathi. We all have come here to Kolhapur to worship the Mahalakshmi. बंद करूँ फिरता कराने का घूमने वाला कर दीजिए कुछ. And you all know about the importance of Mahalakshmi. That Sushumna Nadi is the channel for Mahalakshmi. But this principle of Mahalakshmi is only possible to manifest in us when our principle of Lakshmi is satisfied. When we see poverty in India, we really get very upset about it and think, when will it be all right when all these people will also get the blessings of the divine. So the principle of the divine works through Mahalakshmi. It's a vicious circle that you have to get to a point where your Lakshmi principle is satisfied. And then only you start seeking. And that seeking comes from the Mahalakshmi principle within us. So, Sahaja Yoga grows in the middle path, in the middle section of the society. Very rich will seldom come to Sahaja Yoga. And if they come only, they'll just take few advantages of it and they won't understand the depth of it. In the same way, the poor cannot come. So these are like the two shores of one river that is flowing in between. And if we start expanding, then we will definitely shower the blessings of the divine on both the shores. And I'm sure lots of people who look today to be poor and who appear to be rich will definitely become Sahaja Yogis. It's such a vicious circle that unless and until you become a Sahaja Yogi, your financial situations cannot be improved very much. But you cannot become a Sahaja Yogi unless and until you have got your principle of Lakshmi satisfied. How do we get our Lakshmi principle satisfied? That we should see. That when we have little more money than required, then we start thinking, what shall I do with this money? Then some people think, all right, I'll have one more car, I'll have one more house, I'll have one more this, more that. But sagacity sets in. A kind of a satisfaction sets in
Now, what more? In addition to that, we have taxations, thanks to the government, and all kinds of problems. So people think now I've had enough of it, now no more, finished with it. So the hankering goes away. Hankering for money goes away. In Sahaja Yoga, you are so blessed that you start getting whatever you like. And at a point you reach and you think, oh wow, too much, now no more, I want. This is also another way, even before your Lakshmi principle is satisfied, that if you get your self-realization, you can short-circuit the whole thing. If that is short-circuited, then also you can enter into Mahalakshmi principle. But in case where your situation is such that now you have become overly rich, and if that richness has gone into your head, and you think no end of yourself, then there are still some chances of you getting into Sahaja Yoga. For example, if a very rich man is there, if he gets sick, if he gets cancer, or his children start misbehaving, or he suddenly gets a bad reputation somewhere, some sort of a shock from his right side can push him to the center. Now the left-sided people who are suffering too much because they are poor, because they are lethargic, because they don't know how to get to their jobs. They have no ambitions, nor do they compete. In a way, they are in a better situation than the rich, because they don't have to worry so much about income tax, as if they have solved their problems by having no income, no car. If you have no car, then you don't have problems of car. If you have no, I've done that way, I never drive, so somebody has to drive me. I can go by bus, I can go by rickshaw, anything. But if you drive, then you have to drive all the rest of the people. If you have got, say, a house, you have a problem, everything that you possess, so-called, you have a problem. And till you develop a complete detached feeling about it, the problems are there. So then, what happens to you? That when you start all these problems creeping up, in India especially I have seen, people become generous. Very miserly people also become generous because they become so fed up with their so-called wealth that they start distributing it and giving it away. So the principle of Lakshmi is to give away, to be generous. That principle starts working. Then the second principle of Lakshmi also works with them when they have very nice, beautiful houses and things, then they want people to come to their house, stay there, look after them and give them food. And, they enjoy all this, giving parties or maybe money, anything. So this generosity starts. But that generosity also is not very satisfying. They think that still this generosity is getting into my head. I am still feeling as if I have done some great job, by being generous. Then this generosity, when it doesn't satisfy them, then they start thinking of getting to the truth of life. It's a story about Shivaji, very interesting story. He was once building a very huge, big fort.
and people were working, and he was just looking at them, and he thought, see now, what a nice thing I'm doing. I have given so much work to so many poor people. I was feeling quite happy about it. I was looking at them. Suddenly his Guru Ramdas Swami came there, and they were breaking one boulder. They said, slowly, slowly break it. Do not hit it hard. They were breaking slowly. Ultimately they came to a stone which was just like one coconut. So Ramdas Swami took that coconut in his hand and broke it. And there was water in it, and there was a frog sitting inside. Then Shivaji Maharaj realized that when God creates you, He also provides you with things. You need not be proud that you are doing so much for others. So in this generosity, in this social work and so-called doing for the poor also, you develop a kind of a very funny ego and think no end of yourself. And to pamper it also, people can give you a peace prize, can give you Nobel Prize, this prize, that prize. Then of course there's a very hard nut they create out of your brains. That is how even this generosity can be very dangerous, which creates this kind of a feeling that we are something great and we are doing this great work and we are just looking after so many people. So then we come to another kind of people who are really very miserly. They can never change. I think it's a disease with people who are miserly. They are extremely miserly, and sometimes I see the whole nation is of a miserly nature. They talk of money and there's no decency about it. Many countries who are supposed to be very rich were surprised that the people of that country are not only miserly but indecent and can't understand how they could be like that. There's no culture about it. Like somebody came with us and we went to a hotel for a dinner. And after the dinner, lots of things were left over. So they got up and said, pack it for us. We Indians, we started looking here and there, what is this? Oh, we paid for it. It doesn't matter, I can't just say do that in this country. So there's no shame, there's no decency, there's no decorum about it. This is the greatest curse of being rich. People become absolutely shameless, indecent, arrogant, and above all, absolutely irreligious. So one has to fear those things which are so illusory and look like something being very, very great to achieve. How they can make a human being so horrible, so indecent. Because the rich have no manners at all of any kind. They have no maryadas of any kind. And they don't care for what others are going to say or what they have to be. So such rich countries have gone from left to right, right to left like a yo-yo. We are still doing the same. And also, the kind of ego that comes into a rich man is really very stupid, extremely stupid, and people would laugh at them the way they behave. You must have heard about the king who made chappals out of pearls. And there are people who are trying to show off their wealth in the most hideous manner. To them, to show off their wealth is the only criteria. But whether it is decent or whether it is decorous or
Is it some sort of a very cultured behavior? They are not bothered. They are the people who are killers of culture. And that's how we find the people or the countries which are rich absolutely kill all the culture, all the behavior part of human beings. And the second thing they get into is complete immorality. Complete immorality. They have no morals of any kind. To them, a girl of 20 years is the same as a fiancé, whether they are 80 years of age. They have no sense of proportion. Extremely immoral, live a very immoral and absolutely low-graded life, which even an animal would not do. So they get even not only human, subhuman, but sub-animal also. So all the decency that comes from your culture, or all the norms that are described about the culture, just disappear. They may have a decency as to what glass should be used for which wine, or could be what sort of a dress should be worn for a particular thing. But even that is gone now. Anything is possible. What's wrong? This arrogance of a very incorrigible ego is even thickened when there are 5, 6 more like them, because the competition starts. One says one thing, so another says even a higher thing than that. And the third one starts to compete and says something more than that. And this is going on and on and on and on between these people, all kinds of horrible expressions of their ugly wealth. The whole society becomes so ugly. It so happened, unfortunately, that I had to be with such people also. But thank God, I have my own people now, you are here. My own style, my own time. All of you are here, so close to me, so much. And what an atmosphere you have created. Even people in Kolhapur and here are saying, we have never seen such beautiful people, so well behaved, so balanced. They never fight. They never say bad words, and they never hit each other. Because whatever we had known of foreigners was this, that they would come, enter into any house during the time of British and get whatever they wanted. And later on, these were soldiers, and later on came the hippies. Then came Hare Ramas, one after the another, one better than the other. All these horrible experiences, and then you people coming like great blessings. They are so impressed by you. They are more impressed by you than by me, I can tell you this. I knew that this would happen when they will see lots of Sahjogis together, the way they live, the way they enjoy each other, the way they have a nice time, and the way they are detached about things. Definitely they'll be very much impressed, and that's what is happening today. आप लोग इतने दूर से दिल्ली से यहाँ पर पहुँचे हैं, और सब प्यार है जो खींच के ले आया आपको यहाँ पर, और मैं समझा नहीं सकती हूँ कि मुझे कितना आनंद आ रहा है कि आप लोग सब यहाँ आए। दिल्ली में तो मुलाकात होती रहती है, और बहुत लोगों से मुलाकात होती रही, सबसे देखते रहे हम, और बहुत आप लोगों ने वहाँ पर प्रगति कर ली है। बड़े आश्चर्य की बात है कि दिल्ली जैसा शहर, जिसको कि मैं हमेशा बिल्ली कहती थी, कभी दिल्ली में कहती नहीं थी,
क्योंकि वहाँ के लोग, जिस वक्त मैं वहाँ रही, जब मेरी वहाँ शादी हुई या देखा, तो सिवाय पॉलिटिक्स के और कोई बात ही नहीं करते थे। लेकिन शुरू के ज़माने में वहाँ बहुत बड़े बड़े लोग हो गए, और जब वो पॉलिटिक्स की बात भी करते थे तो यही कि हमारे देश की हालत कैसे ठीक होगी, क्योंकि मेरे पिताजी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर थे, तो कैसा कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए, क्या, मतलब बहुत गहरी बातें करते थे। था तो पॉलिटिक्स ही, लेकिन उस पॉलिटिक्स में और आजकल के पॉलिटिक्स में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है। और फिर उसके बाद ये पता नहीं कहाँ से सब लोग वहाँ पे पहुँच गए, खटमल जैसे कि सारे देश का खून चूसने वाले वहाँ पहुँच गए, और उन्होंने जिस तरह से वहाँ पर राजकारण बनाना शुरू किया, अनीति शुरू कर दी, तो मैं खुद ही सोचती थी कि दिल्ली में कभी सहयोग हो सकेगा? असंभव। मैं सोचती थी असंभव, क्योंकि लोगों को तो यहाँ यही कुर्सी की पड़ी हुई है। उसके बाद जब शास्त्री जी आए तो ज़रूर मुझे थोड़ी सी आशा लगी, और वो भी थोड़े दिन रहे, और उसके बाद जो वहाँ अंधकार शुरू हो गया और जिस तरह की गड़बड़ियाँ शुरू, उसका तो अंदाज़ ही हम नहीं कर सकते। मैं खुद सोचती थी कि इस दिल्ली में सहयोग का आना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब पहली मरतबा मैं दिल्ली गई तो उन्होंने पूजा में मेरे लिए छोटे छोटे प्लास्टिक के डब्बे लाए। वो अपने किचन में थे, उसमें कहीं कुमकुम रखा था, देखा क्या उसमें पहले हल्दी रखी थी, फिर उसको गिरा के उसमें कुमकुम रख के, तो मैं तो एकदम सकुचा गई, एकदम मेरा बॉडी इतना छोटा सा हो गया, घबराहट के मारे कि बाबा ये लोग क्या कर रहे हैं, इनको ये भी अंदाज़ नहीं कि ये क्या कर रहे हैं और अब होगा क्या। सो मैं बस सबको बंधन दे रही थी कि इन पर कोई बुरा असर ना है। फिर लंगड़ाते लंगड़ाते वहाँ पर सहयोग शुरू हुआ किसी तरह से, आपस में मारामारी भी हो गई, झगड़ा झगड़ी हो गई, पैसा खाना हो गया, सब चीज़ें करने के बाद आज सहयोग वहाँ बहुत स्वच्छ रूप से सामने नज़र आ रहा है, जिसकी आप जानते नहीं कितनी बड़ी महिमा है। क्योंकि इस महाराष्ट्र में संत साधुओं ने बहुत काम किया है, सबको खुदगत है कि सहयोग क्या है, सब लोग जानते हैं। यहाँ पे नाथपंथियों ने कार्य किया, यहाँ सहयोग तो बहुत ज़ोरों में होना चाहिए था, लेकिन जिन लोगों ने महालक्ष्मी कौन ये भी नहीं जाना, किसी को दिल्ली में महालक्ष्मी मालूम नहीं था कौन है महालक्ष्मी, वो तो दत्तात्रेय माने कौन उनको पता नहीं था। मेरे पास एक दत्तात्रेय का वो था स्टैचू, तो उसको देख कर के लोग ये कौन है जिनके 3 मुँह, ये कौन, मैंने कहा हाथ धो गई। उनको ये भी नहीं मालूम था कि गुरु कौन होते हैं या दत्तात्रेय कौन है, नानक साहब कौन है। मैं तो कहती हद हो गई, एक का दूसरे को पता नहीं, दूसरे का इनको पता नहीं। बस वहाँ पे यही था कि किसी घर जाओ तो पूछते थे आप कांच के गिलास में पानी पियेंगे कि चांदी के गिलास में। मैं कहती थी भाई ये भी कोई तरीका है। या पूछेंगे आप कच्चा खाना खाएंगे कि पक्का खाना खाएंगे। कहती थी कच्चा पक्का में तो पक्का ही खाएंगे भाई, कच्चा क्या खाया जाता है। तो फिर कह नहीं अच्छा फिर पक्का ही खाते हैं आप। अच्छा फिर चांदी के गिलास में पानी पियेंगे कि कांच के गिलास में, तो समझ नहीं आता। सब कुछ धर्म वर्म यहीं तक सीमित था, कच्चा पक्का क्या है, ऐसा वैसा क्या है। और फिर करवा चौथ करो, और नहीं तो वो गणेश जी का वो सकट महाराज उनका नाम रखा था सकट, और उनकी कहानियाँ इतनी अजीब अजीब सी कहानियाँ उस सकट महाराज की कि मेरी समझ में नहीं आया कि इनको किसने सकट महाराज की ऐसी ऐसी कहानियाँ बता के रखी है। और ये सकट महाराज की कहानी सुनने आइएगा ज़रूर, हमारे यहाँ सकट महाराज की कथा है। अब वहाँ जाइए तो साहब बड़ी अजीब सी हालत, को समझ नहीं आया कि क्या कहाँ गए, कैसे सुने, क्या बात है। ऐसी हालत में आप उनसे सहयोग की बात कहाँ कर सकते। उनको तो महालक्ष्मी क्या है ये नहीं मालूम, उनको महासरस्वती नहीं मालूम, उनको महाकाली नहीं मालूम। हाँ वो कोई काली तो है, पर महाकाली कौन है। कुछ किसी को कोई चीज़ का पता नहीं।
ना मुसलमान धर्म मालूम, ना हिंदू धर्म मालूम, ना ईसाई धर्म मालूम, कोई चीज़ मालूम आती नहीं। सिर्फ पॉलिटिक्स के, और वहाँ कोई कुछ नहीं जानता। कौन मिनिस्टर आज बैठा है, किसके सर पे टोपी है, किसकी टोपी उतार ली, कौन आया राम गया राम, बस इसमें सब एक्सपर्ट्स, औरतें तक। और औरतों में ये बात, और तुम कहाँ रहती हो, मैं यहाँ रहती हूँ। अरे तुम्हारे हस्बैंड क्या क्लर्क है? नहीं भाई क्लर्क तो नहीं। क्या है? मैंने कहा सरकारी नौकर। हाँ होंगे, क्लर्क ही होंगे। यहाँ कैसे रहती हो तुम? अभी आए हैं मुंबई से, तो रह रहे। उनको सब याद कि आपका प्रमोशन कब हुआ, आप कौन, उसका क्या वो है लिस्ट होती, वो लिस्ट, वो सब औरतों को याद। मैंने कहा ये सब धंधे औरतों को करने की ज़रूरत क्या? फिर दूसरा बिजनेस क्लास, उनका और ही धंधा। उस वक्त में कोरिया में वॉर शुरू हुआ था, तो अच्छा ये कोरिया कहाँ है, लड़ाई वड़ाई हो रही, वहाँ दाल चावल भेज सकते हैं कुछ? वहाँ कहाँ भेज सकते हैं दाल चावल? तो फिर ठीक है बिजनेस हो जाएगा वहाँ। मैंने कहा कि कोई आपको पता भी नहीं कि कोरिया कहाँ है, दाल चावल भेजने के लिए तैयार। यानी मेरी समझ में नहीं आता था कि ये इन लोगों के कभी खोपड़ी में आएगी कि नहीं बात कि इससे भी आगे कोई चीज़ है। फिर उससे आगे और आप चले तो वहाँ के सरकारी नौकर, बस उनसे तो वो तो ज़मीन पे रहते नहीं, वो तो अधांतरी घूमते रहते थे। और मैं चुपचाप ही बैठी रहती थी। मैं कहती थी इन लोगों से क्या बात करें, मुझको कुछ वो बातें आती नहीं थी। और आदमी लोगों की बातें अपनी चलती थी, औरतों की अलग, कि भाई तुमने वो ब्यूटी पार्लर में गए थे क्या आप, फलाना ठिकाना ये वो। तो मैं कहती थी मैं तो इतनी अनभिज्ञ हूँ, इन मेरे अज्ञान को मैं इनके सामने क्या रखूँ, मैं क्या बात करूँ। तो बहुत लोग तो सोचते थे कि मैं गूंगी हूँ, और बहुत से लोग सोचते थे मुझे हिंदी भाषा नहीं आती, और बहुत से लोग सोचते थे मुझे अंग्रेजी तो बिल्कुल नहीं आती। मैंने कहा बहुत अच्छे, अपने आराम से बैठे रहो। बस देखती रहती थी कि तमाशे क्या चल रहा है। और इस कदर काना फूसी और इस कदर आपस में रस्सी खींच, ये गया आगे तो उसको गिराओ कैसे, वो गया आगे तो उसको गिराएगा। ऐसे दिल्ली शहर बहुत साल बीत गए, वहाँ रहे हम, लेकिन किसी से दोस्ती नहीं कर पाए। मतलब ये कि किसी से सहयोग की बात नहीं कर पाए, किसी से कह भी नहीं पाए कि ऐसी कोई चीज़ संसार में है, ऐसे परम चैतन्य कोई चीज़। अच्छा वहाँ अगर कोई हो भी, उसको बड़ा पांडित्य आता है। एक बड़े भारी साहब हैं, उनका नाम बहुत बड़ा, अब तो है नहीं वो, कि लोग मानते हैं उनके बड़े भारी फिलोसफर। तो उनसे मिलने गए, वहाँ लाल बहादुर जी भी थे उनके साथ। तो उन्होंने जो सुनाना शुरू कर दिया तो लाल बहादुर जी भी बिल्कुल, वो भी शर्मिंदा हो गए। कहले भाई चलो चलो घर चलो चलो। कहले ऐसा बदतमीज़ आदमी है कि चंडू खाने की सुनाता है और फिलोसोफर है। मैंने कहा देखिए ये हालत है कि ये इन लोगों का लेवल है, ये इन लोगों का तरीके हैं, कहाँ रह रहे, कौन सी दुनिया में रह रहे हैं, कैसे क्या सहयोग की बात यहाँ पर हो। लेकिन मैंने कहा चलो शुरू कर दे। लेकिन आज मैं तो आप ही लोगों की कृपा कहती हूँ कि आपने इसको स्वीकार किया। क्योंकि जिस महाराष्ट्र में इतनी मेहनत हुई, जिस महाराष्ट्र को इसके सब मालूमात थे, उससे ज़्यादा आप लोगों ने इसे स्वीकारा, और इसी तरह से सब जगह फैलते जा रहा है। और जो आते हैं सो जम जाते हैं। हमारे मराठी में एक शब्द है अर्धवट, अब वो उसका हिंदी में कोई भाषांतर नहीं हो सकता। ऐसे लोग वहाँ नहीं, कमाल के लोग हैं। मैं तो आश्चर्य में हूँ कि इतनी भक्ति, इतना प्यार, इतनी गहनता इस दिल्ली शहर में मेरे ख्याल से पांडवों के ज़माने से चली आ रही थी, वो फिर से फलित हुई है। कोई विश्वास ही नहीं कर सकता। जिन्होंने वो दिल्ली देखी है वो इस दिल्ली को विश्वास में आ ही नहीं सकता कि इस तरह की बात हो सकती। तो आप लोगों ने इस महालक्ष्मी को बगैर जाने ही महालक्ष्मी के पथ को अपना लिया, और इसमें पूरी तरह से आप उतर आए। इस महालक्ष्मी के बारे में आप कुछ भी नहीं जानते थे कि ये कौन सा तत्व है या इसे क्या कहते हैं। ये लोग तो सुषुम्ना नाड़ी के बारे में भी नहीं जानते थे
एक हिंदी की बड़ी भारी प्रोफेसर, उनको क्या डी लिट मिला हुआ, वो कह रही थी ये सुषुम्ना वगैरह कुछ होता है क्या? मैंने कहा क्यों? कह रहे इस पर लिखा है कवियों ने कि सुषुम्ना नाड़ी होती है, और कबीरदास ने लिखा है, लेकिन यह कुछ तो भी इमेजिनेशन होगा। मैंने कहा आपने क्यों सोचा इमेजिनेशन? बोले ये सब कहाँ से नाड़ी वाड़ी की बात बेकार में कविता में लाने की क्या ज़रूरत है? कविता में तो ये सब लाना नहीं चाहिए और इसमें कुछ सत्य ही नहीं। मैंने कहा भाई देखो, जो चीज़ आप जानते हैं उसके बारे में आप इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। आप जानने का प्रयत्न, जानने से भी क्या फ़ायदा है, सब बेकार चीज़ें हैं, इस पर रखा क्या? मुझे बहुत इस पर परेशानी, इस तरह से इनको समझाया जाए कि भाई यही चीज़ हमारे हित के लिए है, यही महान चीज़ है और इसे आपको प्राप्त करना होगा। पर जो भी हो, मेरे ख्याल से जो वातावरण राजनीतिक अपने यहाँ इतना गंदा हो गया कि उसी से ऊब करके लोग फिर महालक्ष्मी तत्व पे आ गए। सबसे बड़ी बात है कि इस राजनीतिक तत्व से भी आदमी को ऊबना पड़ता है, वो फिर महालक्ष्मी तत्व पे आ गए और इसीलिए उनके अंदर ये जागृति हो गई। जब देखते हैं कि कितने अजीब तरह के लोग इस राजनीतिकता को वहाँ से अपने मिल्कियत समझ रहे हैं, तब फिर एक तरह से आदमी को घिन सी लगने लग जाती कि क्या है ये लोग, इनमें कोई विशेषता नहीं, इनसे तो हम 1000 गुना अच्छे। और ये जो है सारे भारतवर्ष का उद्धार करने के लिए निकले हैं, खुद अपना तो उद्धार पहले करें, और उसी के वजह से वहाँ पर महालक्ष्मी का तत्व इतना जागृत हो गया। मैं स्वयं ही देख के हैरान हो जाती हूँ कि इस गाज़ियाबाद में, मेरे पति वहाँ कलेक्टर थे मेरठ में, न जाने कितने बार हम गाज़ियाबाद गए, और मैं तो देखती थी, मैं कहती थी ये गाज़ियाबाद है कि क्या आबाद है। बिल्कुल ऐसे लोग कि कुछ कह ही नहीं सकता था कि ये कोई विशेष चीज़ है। बिल्कुल सर्वसाधारण लोग, बहुत आपस में लड़ने झगड़ने वाले, और जाट की जैसे जाट भाषा बोलना ये, और अंदर से इतने उनके अंदर धर्म होगा, अंदर से इतनी उनके अंदर लगन होगी, मुझे पता नहीं थी। और जब उनको देखा मैं तो हैरान हो गई कि कितने सुंदर लोग हैं ये, ऊपर से ऊपर खाबड़ हैं और अंदर से कितने सुंदर हैं। यही हाल हरियाणा का, यही हाल अब लखनऊ का मैं सुनती हूँ। मैं तो लखनऊ के लिए तो मुझे बिल्कुल ही उम्मीद नहीं थी कि लखनऊ में तो बस आपको बातचीत में वो चित कर सकते हैं, लेकिन कोई वो गहरी बात पे उतरेंगे ये मैं कभी नहीं सोच सकती थी। जो मैंने कभी सोचा भी नहीं, जो कभी मैं समझ भी नहीं पाए, वो हठात हो रहा है। ये बड़ा चमत्कार मुझे लगता है कि ये क्या ब्रह्म चैतन्य की कृपा है कि आप लोगों में सब में इतनी पूरी तरह से इस बात की चेतनता आ गई, आप चेतित हो गए और कि आप एक संत हैं और आपको आत्मा स्वरूप होना है और आप आत्मा स्वरूप हो रहे हैं। ये कितनी महान बात है, इसको आप शायद नहीं समझ पाएंगे, लेकिन मैं समझ पाती हूँ, क्योंकि मैंने वो भी हालत देखी है और ये भी हालत देखी है। अगर समझ लीजिए किसी दुर्भिक्ष हो, कहीं पर अकाल पड़ा हो, लोग भूखे मर रहे हों, उनके पास पहनने को कपड़ा नहीं हो, किसी तरह से सब खंडहर हो गया, और वहाँ जाते ही साथ फिर दूसरी मर्तबा आप देखते हैं कि एकदम हरियाली, सब लोग खुशहाल, सब हंस रहे हैं, खुश हैं, तो आपको लगेगा एक मिनट कि क्या मैं इसी दिल्ली में आती थी कि ये कोई और दिल्ली है। ये मैं आपकी तारीफ नहीं कर रही हूँ, सिर्फ मेरे हृदय के उद्गार हैं जिन्हें मैं कह रही। लेकिन संभल के रहिए, बहुत सी बातें ऐसी होती हैं अज्ञात में जबकि हमारे ऊपर नेगेटिविटी असर मार सकती है, इसलिए बहुत संभल के रहना चाहिए। आता मराठी भाषेत सांगायचं म्हणजे की मराठी भाषेसारखी भाषा नाही अध्यात्माला, इतकी ओघवती भाषा आहे, आणि जर मला मराठी भाषा आली नसती
तर मी सहयोगाचं वर्णनच करू शकले नसते. इतकी आपल्यावर कृपा या भाषेची आहे. तसेच आपल्या देशात केवढे मोठे संत, महासंत झाले. इतके संत कोणत्याही भागात हिंदुस्थानात झाले नाहीत किंवा जगातही कुठे झाले नाही इतके संत झाले. तर असा प्रश्न येतो की हे संत आले, यांनी एवढं कार्य केलं, पण त्यांना छळून आपण मारलं, त्यांची काही कदर केली नाही. महाराष्ट्रात अष्टविनायक आहेत, स्वयंभू अष्टविनायक आहेत. त्याशिवाय इथे महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तिन्ही देवी आहेत. तुम्हाला माहितीच आहे ते, मला सांगायला. हे सगळं असताना प्रत्येक ह्याच्यात जेजुरीचा खंडोबा आपण आठवतो, नंतर इथली रेणुकादेवी, तिथलं ते सगळं आपल्याला माहिती आहे. रोजच्या बोलण्यात, भाषणात सगळ्यांना सगळं माहिती आहे. कुठे कोणचं आहे, कोणची जागा जागृत आहे, कुठे. एवढं म्हणजे नुसतं मंदिरासारखं हे महाराष्ट्राचं आहे. कुठेही जा तरी तिथे एखादं कोणतं तरी जागृत स्थान असेल. इथे वीर म्हणून एक जागा आहे, तिथे मी गेले होते. मला आश्चर्य वाटलं. तिथे म्हणजे काय अगदी कार्तिकेयाचं म्हणजे टाप पडलेली स्पष्ट दिसते. अशा महत्त्वाच्या ठिकाणी. नंतर इकडे नीरा नदी आहे. नीरा नदीच्या काळजी नरसिंहाचं अवतरण म्हणून त्यांनी तिथे नरसिंहाची मूर्ती बसवलेली आहे. नरसिंगपूर म्हणून जागा आहे. ती मूर्ती नुसती ह्याची आहे, काय म्हणतात त्याला, वाळूची आहे, पण अजून जशीच्या तशी. आणि वरून कुठून तरी पाणी पडतं ते कुणाला माहीत नाही. म्हणजे इथे परमेश्वरी चमत्कार फार आहेत. हे सगळं असताना सुद्धा महाराष्ट्राची अस्मिता काय ते मला अजून समजलं आजच्या काळात. कारण एकतर इथे बुद्धिवादी आलेत मधूनच उपटसुंबासारखे आणि सांगायला तुम्हाला की देव परमेश्वर कोण नाही. झालं, कोणी काय म्हटलं की झालं, त्याच्यावर विश्वास ठेवायचा. इकडे हे आहेत महामूर्ख आणि तिकडे दुसरे भोंदू लोक आहेत जे दारोदार गुरु म्हणून फिरतात. ह्या दोघांच्या चाकोरीमुळे ते दोन चाकांच्या मध्ये आपला महाराष्ट्र खरोखर अगदी पिंजून निघाला आहे. त्यातली जी विशेषता जी की सगळं लक्ष अध्यात्माकडे. आयुष्याला काही दुसरा अर्थ नाही. जोपर्यंत आपण परमेश्वर मिळाला नाही तोपर्यंत आपल्याला काही अर्थ नाही. अहो पण आपण म्हणजे कितीतरी इथे असे कार्य केलेले आहेत ज्याला आपण म्हणू की नाथपंथीयांनी इतक्या तऱ्हेने लोकांना समजावून सांगितलं. आणि त्याच्यानंतर संतांनी एवढं कार्य केलेलं आहे. आता मी जे बोलते तसंच सगळं ते बोलले. त्यांनी शिव्या घातल्या, एवढाच फरक. मला शिव्या काही येत नाहीत. रामदास स्वामींनी आहे, त्यांना काही शिव्या येत नव्हत्या. माझ्यासारख्यात काहीतरी मनाने शिव्या काढून कुल्लाळ वगैरे वगैरे शब्द अशा लोकांना लावले जे खोटे होते. तर सगळ्यांवर त्यांनी अगदी चौफेर दाण त्यांना करून टाकलं. पण त्या सगळ्यांचा परिणाम अजून आपल्या ह्याच्यात आलेला नाही. मला हे आश्चर्य वाटतं की ज्या महाराष्ट्रात आम्ही खूप राबून घेतलं आहे स्वतःला, त्या ठिकाणी अजून भाऊबंदकी आहे, अजून आपापसात भांडणं आहेत. तेव्हा हे सहयोगात सगळं संपलं पाहिजे. आणि जर हे संपलं नाही तर ह्या महाराष्ट्राची जी मी एवढी महती साऱ्या जगात सांगत फिरते ना, कारण इथे चैतन्य किती आहे. इथे आल्याबरोबर एकदम वेगळं वाटायला लागतं. हे सगळं असून लोकांच्यावर त्याचा परिणाम नाही. घरोघर आता दारू पोचलेली, घरोघर. कोणत्या खेडेगावात जा सगळे दारू पिऊन लोक धुंद. काहीतरी ह्या बाबतीत करायला पाहिजे. असं कसं झालं ह्या 20 वर्षात? इतकं कसं बिघडून गेलं सगळं मला समजत नाही. आणि असं बिघडू नये म्हणून काय करायला पाहिजे तेही विचारात आणलं पाहिजे. फक्त सहयोग वाढवायला पाहिजे. तर सगळ्यामध्ये जास्त महाराष्ट्रीयन लोकांनीच कर्तव्यदक्ष व्हायला पाहिजे, कार्यदक्ष व्हायचे पाहिजे, कार्यक्षम झालं पाहिजे आणि करून दाखवलं पाहिजे. शेजारच्या खेडेपाड्यात जावं. आजकालची आपली तरुण मंडळी आहेत त्यांना भेटावं, त्यांच्याशी बोलणी करावी, त्यांना समजावून सांगावं की अध्यात्म आहे. अहो साक्षात महालक्ष्मी या कोल्हापुरात बसली असून इथे लोक काय काय धंदे करतात ते जर तुम्ही पाहिलं तर तुम्हाला आश्चर्य वाटेल. त्यांना भीती नाही त्या महालक्ष्मीची.
देवळात जायचं, काहीतरी डोकं तिथे टेकवायचं, वेणी बिणी काय द्यायची असेल ती देऊन चालले परत गुत्त्या. वाटेल तशी मारहाण करायची बायकांना, शिव्या द्यायच्या, वाटेल तसं वागायचं, त्याला काही अंत नाही राहिलेला. तेव्हा लक्षात हे घेतलं पाहिजे की कुठेतरी आपलं चुकलेलं आहे, कुठेतरी आपण विसरलो. आणि विसरलो काय आपण? विसरलो हे की आपण महाराष्ट्रात राहतो. स्वतःबद्दल आत्मसन्मान राहिलेला नाही. आम्ही कोण? आणि जो राहिला आहे तो इतका चुकीचा आहे की नुसती आढ्यता, त्याच्यामध्ये कोणत्याही तऱ्हेची सन्माननीय गोष्ट नाही, फक्त आढ्यता. त्या आढ्यतेत बसून राहिलं. सगळे शिवाजी महाराज झाले. अहो, त्यांच्या पायाच्या धुळीबरोबर जरी झाले तरी पुष्कळ झालं. तर महाराष्ट्रातल्या सहयोगांना ह्या लोकांच्या मानाने 10 पट जास्त कार्य करायला पाहिजे, 10 पट मेहनत करायला पाहिजे. कारण आपण फार मागासले आहोत सहयोगात. पुष्कळ चमत्कार झाले, सगळ्यांना अनुभव आले, सगळ्यांनी मला सांगितलं माताजी हा चमत्कार झाला, तो चमत्कार झाला. कबूल, खूप चमत्कार झाले. पण हे सारे चमत्कार झाले आणि सगळं तुम्ही पाहिलं. पण आता ह्याच्यात भागीदार इतर लोकांना घेतलं पाहिजे, धडाडीने ह्याच्यात वागलं पाहिजे. आसपासच्या खेडेगावात जावं, सगळीकडे जावं, सहयोगाबद्दल बोलायचं. एका गृहस्थाला मी म्हटलं की तुम्ही करू शकता, तर त्यांनी सांगितलं मला 8,000 रुपये महिना द्या. अहो म्हटलं 8,000 रुपये आपल्या प्राईम मिनिस्टरला नाही मिळत महिन्याला, आणि तुम्हाला कुठून आणून द्यायचं 8,000 रुपये? कळलं का तुम्हाला? तर सगळ्या महाराष्ट्रीयन लोकांनी त्या महालक्ष्मीच्या वंदनात स्वतःला, आम्हाला महालक्ष्मीचं तत्त्व मिळालं म्हणजे काय, तर आम्ही उच्च पदाला गेलो, आम्ही सगळे संत झालो. आता ह्या महाराष्ट्राला उजवायचं काम आमचं आहे, प्रकाश आणण्याचं काम आमचं आहे. त्याची मेहनत करायची. ती मेहनत केल्याशिवाय कधीही तुम्हाला सुख मिळणार नाही. आणि तुम्हाला ते जे समाधान आहे ते मिळणार नाही सहयोगाचं, जोपर्यंत तुम्ही ह्या संबंध महाराष्ट्रामध्ये सहयोग गाजवणार नाही. अहो, त्या हैदराबादला 7,000 माणसं आली होती प्रोग्रामला. हैदराबादला तिथे मला वाटतं 1-2च संत साधू झाले होते. आणि इतके लोक. मग काय, आपल्या इथे सुद्धा आपण जर पब्लिक प्रोग्राम केला, आपण जर लोकांना जाऊन भेटलो, त्यांच्याशी गोष्टी केल्या, त्यांच्याशी बोललो, त्यांना जागृती दिली, तुमच्या सगळ्यांच्या हातात शक्त्या दिलेल्या आहेत, तर हा महाराष्ट्रसुद्धा एका फार उच्च पदावर आहे. तुमच्यामध्ये गुण आहेत, गणपती तुमचे चांगले आहेत, वाचन आहे, तुम्हाला माहिती आहे. आणि ज्या लोकांना गणपतीचा ग माहिती आहे त्या लोकांना मी सगळं सांगितलं. तर तुम्ही इथं गणपतीला सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत गणपती गणपती करत बसतात आणि त्या गणपतीतलं काही तुमच्या सार येत नाही. अहो, ज्यांनी आईच्या प्रेमासाठी, श्रद्धेसाठी सगळ्या जगाशी भांडण घेतलं, त्या गणपतीला तुम्ही जर मानता तर तुम्ही काहीतरी करायला पाहिजे. निदान माझ्यासाठी तरी करा, पण खरोखर म्हणजे महाराष्ट्रासाठी काहीतरी करायला पाहिजे. आणि अशी मी कळकळीची मी तुम्हाला सगळ्यांना विनंती करते की आता इथून गेल्यावर आपण आता जाऊच म्हणा गणपतीपुळ्याला, पण त्याच्यानंतर मात्र तुम्ही हा विचार करायचा की का हो, आता आपण 4-5 जणी म्हणून किंवा 4-5 जण म्हणून जाऊया ह्यात खेड्यात, जाऊया तिकडे त्या बोलूया. तुम्ही एकदा त्यांना सहयोगात घेऊन या, म्हणजे दारू अशी सोडवते मी, पण ते आला पाहिजेत. मग हे तंबाखू सुटेल, सगळं सुटेल, पण तुमचं भलं झालं, तुम्ही चांगले झाले, आनंद झाले, आता आम्हाला कशाला दुसऱ्यांचं नको रे बाबा, असं नाही करायचं. ती प्रवृत्ती आता सोडून मेहनत ही करायला पाहिजे. जस्ट याला प्यार करायची कभी रखना नहीं फिट भी पैर दुखने लग जाते. तर असे ह्या महाराष्ट्रात ही मंडळी आली. मी पुष्कळ मेहनत केली, तुम्हाला माहिती, इतके वर्ष मी ह्या महाराष्ट्रात मेहनत केलेली आहे आणि खूप खूप मेहनत केली, थोडी नाही, खूप मेहनत केलेली आहे. फक्त सांगायचं असं की एवढी सर्व मेहनत करून
परत त्या संतांसारखं झालं नाही पाहिजे. सहयोग हा वाढवलाच पाहिजे, त्याची प्रगती केलीच पाहिजे. अर्थात गहनतेत तुम्ही जाल, पण गहनता घेऊन तरी काय करायचं? जर हे पसरवलं नाही तर दुसरे संत जसे झाले तसेच तुम्ही. सहयोगाचा जर तुम्हाला प्रसार करायचा असला तर तुमच्यासाठी तर सर्वात सोपं असायला पाहिजे. कारण संबंध जेवढं काही संतांचं कार्य आहे तेच आपण करतो आहे, तेच आपण पूर्णत्वाला आणतो आहे. तेव्हा तुम्हाला त्याबद्दल कधीच काही त्रासच व्हायला नको. सगळं समोर आहे. तर दिल्लीकरांना काय सांगायचं तेही समजले, आणि ह्या परदेशातल्या लोकांना सांगायचं ते तरी फारच कठीण होतं, तेही समजले. मग काय महाराष्ट्रातले लोक समजणार नाहीत तुम्हाला? असं शक्यच नाही. पण फक्त आपण निघायला पाहिजे. आपल्यापुरतं सहयोग असा ठेवायचा नाही. सगळ्यांनी काहीतरी ह्याबद्दल एखादी योजना करावी आणि मला सांगा काय तुम्ही योजना केलेली आहे की तुम्ही कसं काय करणार, कोणत्या कोणत्या गावी जाणार, कोणत्या कोणत्या खेडेगावात जाणार. आणि जोपर्यंत हे होणार नाही तोपर्यंत आपल्या महाराष्ट्राचा उद्धार होणं शक्य असो. आता सगळ्यांना माझा अनंत आशीर्वाद आहे. आज महाकालीचं आपण आवाहन करूया आणि तिची पूजा